morning, children. Myself, Sarita Chaudhary, TGT Science teacher from St. Joseph Public School, Tom. In today's video, friends, we are going to start a new chapter of your science textbook. That is chapter number 8, motion. In previous videos, we covered 2 chapters of chemistry portion. So, आज physics का एक chapter start करते हैं, that is the motion. Starting with the introductory part of this chapter, the very first question arises that what the motion is. How you can define motion? In simple language, motion is a kind of movement, and this is the vital characteristic feature of life. जूनियर क्लासेस में जब आप लिविंग बीइंग्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को स्टडी करते हैं तो उनमें से एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर मूवमेंट भी आता है, मोशन भी आता है. That living things they show the motion, whereas the non-living things they do not show the certain kind of motion, right? तो बात करते हैं कि मोशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर. टू डिफाइन मोशन स्टूडेंट्स we need to understand one or two simple concepts over here, that what the stationary objects are. If we take example of classroom, so in classroom students the walls, furniture, whiteboard, they all are in the stationary position. वो सब रुके हुए हैं, अपनी अपनी जगह पे स्टेबल हैं. But the blades of fan, when the fan is switched on, जब हम fan को switch on करते हैं तो fan की blades they show the motion. उनकी position continuously in the respect of the other objects in the classroom, that is continuously changing. क्लास में बाकी सब चीजें तो स्टेबल हैं, but fan की blade की position continuously change हो रही है. Now we can see that fan is in the state of motion. वो fan अभी motion state के अंदर exist कर रहा है. So motion को हमने कैसे define किया? Motion can be defined that an object is said to be in motion if its position changes with respect to stationary objects. So this is how we can define motion. हमने क्लासरूम के एग्जांपल के थ्रू समझा कि मोशन क्या होता है. अब बात करते हैं what about the rest and motion. The rest और motion कैसी terms हैं? Students, there are different types of motions. Motions can be in a straight line, it can be in the circular path, it can be in the zigzag path. हम बात करते हैं rest और motion की. So rest and motion they are the relative terms. And how we can prove it कि rest और motion relative terms होती हैं. Let's discuss some simple examples to understand this concept over here. Students, when you are standing on the road side, आप रोड की साइड पे खड़े हैं and one moving car comes in front of you and that is moving straight in on the road, वो रोड पे सीधी निकल रही है. So the trees, the buildings, the road, they all are in the stable condition. But in front of you, one object changes its position with respect to the surrounding stationary objects. That's why we said that moving car, that moving bus is in the state of motion. But if you are traveling inside a moving bus, अगर आप एक moving bus के अंदर ही traveling कर रहे हैं, at that time, if you look out from the window, what you see? You see that the trees or the buildings at the side of the roads, they appear to move in the backward direction. हमें feel होता है कि वो backward direction में movement कर रहे हैं. Because when we are traveling inside the bus, so inside the bus seats and passengers, they all are in the state of rest for us. और इन सब stationary object के comparison में बाहर जब हम विंडो से देखते हैं तो हमें लग रहा है कि बाहर की चीजों की पोजीशन क्या हो रही है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है. दैट्स व्हाई दोस ट्रीज एंड बिल्डिंग्स at the roadside they appear to move, they appear to be in the state of motion for us. And when we are inside the bus, हम एक moving bus के जब अंदर हैं तो वहाँ पे all the passengers and luggage and seats they all are in the stationary
पोजीशन फॉर अस, तो हमें लगता है कि बस के अंदर सब चीजें हमारे लिए क्या है, they are in the state of rest. So this is how we can prove that rest and motion, they are the relative terms. One object can be in the state of rest for the one person and the same object can be in the state of motion for the another person. हो सकता है कि वो जो बस मूवमेंट कर रही है, जब हम रोड पे खड़े हैं तब हमारे लिए वो मूविंग बस की स्टेट में है, दैट इज इन द स्टेट ऑफ मोशन, बट वही सेम बस जब हम बस के अंदर बैठे होते हैं तब हमें उनकी स्टेट में फील होती है, दैट अपीयर्स टू बी द स्टेट ऑफ रेस्ट. So I suppose that the concept of motion and rest, they are clear to you students. अब बात करते हैं in this chapter number 8 of science, in the motion chapter, we will study in detail about the motion in the straight path, कि object में straight path में कैसे motion होता है, and we'll cover the different concepts of this chapter. बहुत सारी definitions आने वाली हैं, कुछ derivations आएंगे, कुछ numericals आएंगे, and at the end of the chapter we will study the circular motion in brief, कि circular motion क्या होता है. मोशन को समझने के लिए और भी हम बहुत से एग्जांपल्स ले सकते हैं, लाइक इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद नाउ वी नो वेरी वेल दैट एयर, इट आल्सो शोज द मोशन बिकॉज़ इट इज द गैसियस स्टेट ऑफ एनी मैटर, बट हमें एयर मूवमेंट करती हुई नहीं दिखाई देती है. वी सी इट्स इम्पैक्ट इन अ सराउंडिंग, हमें दिखाई देते हैं कि कैसे डस्ट पार्टिकल्स मूवमेंट कर रहे हैं, हाउ द लीव्स ऑफ ट्रीज दे आर मूविंग, हाउ फैब्रिक्स आर मूविंग, तो हमें पता चलता है कि ओके एयर इज ब्लोइंग इन दिस पर्टिकुलर एरिया. जितने भी डेज एंड नाइट्स कॉज हो रहे हैं, सीजन्स कॉज हो रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड देम, डे नाइट और सीजन्स का रीजन क्या है, द रीजन इज अगेन द रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. अर्थ जब अपनी स्पिन एक्सिस पे स्पिनिंग कर रही है, डे एंड नाइट कॉजेज हो रहे हैं, अर्थ जब सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, दैट कॉजेज द डिफरेंट सीजन्स, राइट. सो हमने बहुत से एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए हैं कि मोशन के और कॉन्सेप्ट क्लियर होता है रेस्ट एंड मोशन का. Let's move ahead in this chapter. Let's talk about the reference point in time and again in this chapter. We will use this term कि reference point क्या होता है. Students, reference point is an ideal point. कोई ideal एक जगह है, कोई एक fixed place है जिससे हम अपनी लोकेशन को प्रूव कर पा रहे हैं, स्टेट कर पा रहे हैं किसी दूसरे पर्सन के लिए. Just for simple example, कि इमेजिन करते हैं कि here is the railway station. यहाँ पे क्या है, रेलवे स्टेशन है. नाउ द पोजीशन ऑफ दिस रेलवे स्टेशन, इट डजंट चेंज फ्रीक्वेंटली. एक सिटी के अंदर जो रेलवे स्टेशन है वो वहीं पर रहेगा फॉर मेनी इयर्स, फॉर 100 years, राइट. तो रेलवे स्टेशन की पोजीशन तो क्या हुई, फिक्स हुई, बट नोबडी नोज दैट वेयर माय हाउस लोकेटेड. इस सिटी के अंदर मेरा हाउस किस जगह पे है वो तो किसी को पता ही नहीं है. सो हाउ कैन आई से कि मेरा घर कहाँ पे है, माय हाउस इज 1 kilometer away from the railway station. मेरा घर कहाँ पे है, रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, इन दी ईस्ट डायरेक्शन और इन द वेस्ट डायरेक्शन, जिस भी डायरेक्शन हम उसको बताना चाहते हैं अकॉर्डिंगली. सो दिस रेलवे स्टेशन इज अ काइंड ऑफ रेफरेंस पॉइंट. अब इस रेलवे स्टेशन को क्या कह देंगे, रेफरेंस पॉइंट. तो मेरी हाउस की पोजीशन को लोकेट करने के लिए, लोकेशन को बताने के लिए हमने रेलवे स्टेशन किसकी फॉर्म में यूज किया है, रेफरेंस पॉइंट की फॉर्म में यूज किया. In the other form, if I am living just nearby this St. Joseph Public School in Tong, so I can say that my house is 5 kilometers away from the St. Joseph Public School. अब इस स्कूल की पोजीशन फिक्स्ड है एक जगह पे, तो स्कूल मेरे लिए क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट का वर्क कर रहा है, और इससे कितनी डिस्टेंस पे, कितनी दूरी पे, किस डायरेक्शन में मेरा घर है, that I can easily explain to anyone. तो किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए जो हमें स्टेबल स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ रेफरेंस पॉइंट. उसको हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं. चैप्टर में बार-बार दो टर्म्स और आएंगे. दीज आर द स्केलर क्वांटिटीज एंड द वेक्टर क्वांटिटीज. What a scalar quantity is? If any distance, अगर कोई भी डिस्टेंस है या कोई दूसरी चीज है, उसके अंदर अगर हमें सिर्फ उस चीज का मैग्नीट्यूड पता है, मैग्नीट्यूड मीन्स वी कैन से न्यूमेरिकल वैल्यू. न्यूमेरिकल
वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा दैट माई हाउस इज लोकेटेड 1 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। मेरा घर रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे ईस्ट डायरेक्शन में लोकेटेड है। तो मैंने अगर यहाँ पे डायरेक्शन यूज ना करें और हम सिर्फ क्या बता रहे हैं कि मेरा घर रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, सो ये 1 किलोमीटर, ये जो 1 है ये यहाँ पे क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है। अगर मैंने इसमें डायरेक्शन नहीं बताया, मैंने सिर्फ क्या बताया है, न्यूमेरिकल वैल्यू बताई है, देन दीज टाइप ऑफ क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी, राइट। एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी, अगर मैंने इस एग्जांपल के अंदर इफ आई एम सेइंग दैट माय हाउस इज 1 किलोमीटर अवे from the railway station in the east direction, that means if along with the magnitude, along with the numerical value, along with the number, if I am giving the direction also, अगर हम उस चीज के साथ उसकी डायरेक्शन को भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, then that becomes the scale vector quantity। तो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, and in the vector quantities direction is also given along with the magnitude, along with the numerical value। clear। अब बात करते हैं आगे इस टॉपिक के अंदर, that is the distance and displacement। exam के the students what type of questions will be raised, like you can be simply asked define the motion, how you can prove that rest and motion are the relative terms, or they may ask what is a scalar quantity, what do you mean by the vector quantity, and the question definition of distance and displacement, they are also frequently asked in the examination। you can also be asked to differentiate the distance and displacement। तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं फिर से कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। टू अंडरस्टैंड द डिस्टेंस फर्स्ट एक एग्जांपल हम लेते हैं, जस्ट से आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर, दिस इज माय इनिशियल पॉइंट ओ, ये मेरा कोई इनिशियल पॉइंट है, मैं यहाँ पे अभी खड़ी हूँ, एंड आफ्टर 10 मिनट्स आई कवर्ड दिस मच लेंथ, मैंने इतना पाथ ट्रेवल किया है, दिस पाथ इज हैविंग 10 किलोमीटर, इतना पाथ जो है वो 10 किलोमीटर लंबा है, राइट। एंड आई डिडंट स्टॉप ओवर हियर, आई केप्ट ऑन मूविंग, मैंने और फर्दर मोशन शुरू किया, एंड आफ्टर हाफ एन आवर I reached the second position. This was the O initial position. I reached to the A position after covering 10 kilometer path. Then I reached to the B position after traveling the again let's take it 10. हम 10 ले लेते हैं इसको कि 10 किलोमीटर पाथ फिर कवर करके हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। And उसके बाद after like 2 hours I reached this point, C point, and I traveled 50 किलोमीटर पाथ, मैंने 50 किलोमीटर पाथ यहाँ पे ट्रेवल किया है, एंड दिस वन इज माय फाइनल पॉइंट, से ये मेरा क्या हो गया फाइनल पॉइंट है, दिस इज माय डेस्टिनेशन। अब कोई आपसे पूछता है कि हाउ मच टोटल पाथ यू कवर्ड व्हेन यू मूव्ड फ्रॉम द पॉइंट O टू द पॉइंट C, आपने टोटल पाथ कितना कवर किया, सो दैट बिकम्स 10 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर प्लस 50 kilometer and it becomes 70 kilometer, right? So the actual path covered by an object while moving from its initial point to its final point or position, that actual path covered is called as distance। So what the distance is? Distance is the actual path traveled by an object while showing the motion। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसे जो एक्चुअल पाथ कवर किया उसको हमने क्या कह दिया है यहाँ पे डिस्टेंस कहा है। जस्ट इमेजिन दैट ये भी मेरा फाइनल पॉइंट नहीं है, आफ्टर रीचिंग टू द सी पॉइंट आई रिटर्न बैक, मैं वापस रिटर्न कर रही हूँ, एंड आई केम टू हियर, मैं बी पॉइंट तक पहुँच गई। अब कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस यू कवर्ड, आपने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है व्हाइल मूविंग फ्रॉम योर इनिशियल पॉइंट टू योर फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने में टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की। सो व्हाट इट बिकम्स, इट इज फ्रॉम O to A is 10 kilometer distance, from A to B again it is 10 kilometer distance, from B to C it is 50 kilometer distance, but after reaching to the point C I came back from C to the
B point. That means I covered additional 50 किलोमीटर डिस्टेंस. मैंने 50 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ पे और ट्रेवल करनी है. So now my total distance it becomes 50 plus 50 100 and plus 20 that becomes 120 किलोमीटर. एंड टोटल कितने डिस्टेंस ट्रेवल किए यहाँ पे 120 किलोमीटर मैंने यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल की है. So I hope that concept of distance is clear to you. It is the actual path traveled by an object while showing its motion. कोई ऑब्जेक्ट जितना भी टोटल रास्ता कवर करता है उसको हम उसकी डिस्टेंस कहते हैं. Now whenever you mention the distance आप कहोगे कि हमने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो I never say ना that I travel the 5 distance, I travel the 10 distance. हम उनके पीछे कोई यूनिट यूज करते हैं. तो यूनिट्स को शो करने के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है IUPAC ऑर्गेनाइज सिस्टम, जिसके अंदर इट गिव्स अस स्टैंडर्ड यूनिट्स जो हमें स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स प्रोवाइड करवाता है. एंड दैट दोज यूनिट्स दे आर कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स. इनको हम स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स कहते हैं, जो पूरे वर्ल्ड में हम कहीं पर भी जाए तो वो सेम यूज होती है. लाइक इन इंडिया we used to say that I have traveled 10 kilometer distance or 20 kilometer distance. If you move to the UK, there also the distance is shown in the kilometer. तो बात कर रहे हैं what is the SI unit of distance. Distance की SI unit क्या होती है? The SI unit of distance it is meter. It is meter shown by small m and dot. इससे हम इसको represent करते हैं. And bigger units में हम इसको किलोमीटर के अंदर भी mention कर देते हैं. तो जब भी आप डिस्टेंस बताओगे तो आप साथ में उसकी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट मीटर या उसकी लार्ज यूनिट जो है किलोमीटर है दैट इज द मस्ट. तो डिस्टेंस समझ में आ रहा है ना? टेल मी वन थिंग स्टूडेंट्स, वेदर दिस डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी और इट इज द वेक्टर क्वांटिटी. डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है या फिर ये वेक्टर क्वांटिटी है? सो द आंसर इज दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी because in distance there is no rule of the direction. Distance में हम कभी भी डायरेक्शन को शो नहीं करते. What we are expressing, we are only expressing the numerical value with its unit. हमने कहा कि 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है, 200 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है. We never say कि हमने 120 किलोमीटर डिस्टेंस किस डायरेक्शन में ट्रेवल की है. Fine. So the distance it is always a kind of scalar quantity. distance हमेशा एक scalar quantity होती है. कुछ और चीजें बात करते हैं related with the distance. Students, this distance it can never be zero. ये distance कभी भी zero नहीं हो सकती. What the reason behind it is like if I'm saying that an object is in the state of motion or it was in the state of motion before 5 minutes, तो उस ऑब्जेक्ट ने इट मस्ट हैव स्टार्टेड इट्स मोशन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट. उसने अपनी इनिशियल पोजीशन से स्टार्टिंग पोजीशन से कुछ तो पाथ कवर किया होगा, वेदर इज द 5 मीटर और इट इज 10 मीटर ओनली. सिर्फ इतना मीटर ही उसे डिस्टेंस ट्रैवल किया हो, पाथ ट्रैवल किया हो. सो डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो. डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती. इट कैन नेवर बी नेगेटिव, इट कैन नेवर बी पॉजिटिव. हम डिस्टेंस को सिर्फ इसमें कंसीडर करते हैं एक टोटल न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर स्टडी करते हैं. ये जीरो नहीं होगी कभी भी, ये नेगेटिव. सॉरी, इट कैन बी पॉजिटिव बट इट कैन नेवर बी नेगेटिव. ये नेगेटिव नहीं हो सकती है. एंड आफ्टर क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस, in next video students we will study in detail about the displacement. So till then, thanks for watching.